Hello and welcome everyone in today's class. Today we are going to study our second chapter, The Adventures of Toto. It is written by Ruskin Bond. Toto is a monkey in this story and he is so mischievous. He always does mischief and he disturbs other animals also in this story. Once the grandfather of Ruskin Bond bought Toto from Tonga driver. He gave him 5 rupees price for that monkey. But when he bought the monkey, he took out that monkey at home and they were feeling that this Toto should not be known to grandmother because grandmother doesn't like such a type of animals in her house. Grandfather had a special house for keeping animals. So we can say he had a zoo for the animals, and in that zoo he would keep all the animals. So first he kept animal in his house, but then he realized that the monkey is so mischievous and he is doing mischief always. He tore the cloths, then he tore some ornamental papers from the wall. So such a type of behavior was there of Toto, and he disturbs some women also. He even disturbs grandmother and all that. He was doing mischief. So at last the grandfather realized that to keep Toto at home it is not good for him because they were not so much rich, because he was breaking plates, he was breaking some instruments. So that's why they decided to resell it to Tonga driver again. So the grandfather at the end of the story resold Toto in 3 rupees. So he had loss of 2 rupees, but he felt happy to sell him back. Why? Because he was doing so much mischief. So we'll start the story. The Adventures of Toto. Have you ever had a baby monkey as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. So have you ever had a monkey as a pet? कभी आपका पेट था मंकी, आपके घर में कभी था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे वो बताते हैं कि टोटो जो है एक बेबी मंकी है और हमें स्टोरी रीड करने के बाद फाइंड आउट करना है कि ये मिस्चीवियस था, बहुत ही नखरे करने वाला, शरारती था, या डोसाइल था यानी बहुत ही ओबीडियंट था। ये हमें at the end of the story we will realize that what type of the monkey he had. So grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. So once grandfather bought a monkey whose name was Toto and he bought it from the Tonga driver, he gave him 5 rupees price for that monkey. The Tonga driver used to keep the little red monkey tied to a feeding trough, and the monkey looked so out of place there that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. So the Tonga driver जो होता है ना, वो टांगा चलाने वाला होता है हॉर्स के ज़रिए. सो यहाँ पे उससे 5 रुपये में जब मंकी को ख़रीदा गया तो उसका रीज़न ये था कि ग्रैंडफादर ने देखा था, ग्रैंडफादर ऑलवेज ऑब्जर्व दैट द टोंगा ड्राइवर हैज़ कीपिंग मंकी विथ हिम, बट ही वॉज ऑलवेज टाइंग दैट मंकी टू द फीडिंग ट्रफ. फीडिंग ट्रफ जो होता है ना, उसमें किसी एनिमल्स को कुछ खिलाने के लिए या पानी पिलाने के लिए रखा जाता है, एक टफ की तरह होता है, तो उसको बांध के रखा जाता था. तो ग्रैंडफादर को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी कि उसको हमेशा बांध के रखा जाता है. सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम टू हिज जू बिकॉज ही हैड अ जू. उसके पास खुद का एक जू था जिसमें कुछ एनिमल्स उन्होंने रखे हुए थे. तो उसने सोचा कि ये मेरे जू के लिए एक अच्छा एनिमल हो सकता है, अच्छा हो सकता है, इसलिए उसको प्राइवेट जू में वो लेके जाते हैं. Toto was a pretty monkey. His bright eyes sparkled with mischief beneath deep set eyebrow. So Toto जो था बहुत ही प्रीटी था, बहुत ही अच्छा दिखने में था वो मंकी, and his eyes were bright that it looks like sparkling, and there was a deep set eyebrows. उसकी जो आईब्रोज थी बहुत ही डीप सेट. किसी भी मंकी के आप देखोगे आईब्रो जो होती है अंदर जा चुकी होती है थोड़ी उनकी आँखें, जैसे हमने रिसेंटली एक पिक्चर में आपने देखा होगा उसकी आईब्रोज कैसी होती है. सो वो मिस्चिप दिखती थी उसकी आंखों में कि शरारती मंकी है ये, इस तरह से. एंड हिज टीथ विच वेयर अ पर्ली वाइट, एंड हिज टीथ लुक लाइक अ पर्ल एंड इट वेयर वाइट. बहुत ही अच्छे थे वो, उसके जो दांत थे, टीथ पर्ली वाइट बोला गया है. इसका मतलब होता है कि जो पर्ल्स होता है उनके जैसे वाइट थे वो.
किसी मोतियों की तरह, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. So sometimes what happens, because of his mischievous behavior, some Anglo-Indian ladies would frighten. सो उनको डर लगने लगता था कभी कभी इस मंकी को देख के, जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थे. एंग्लो इंडियन क्या होता है, जो बिलोंग करते हैं इंडिया एज वेल एज ब्रिटिश या किसी और कंट्री को, यानी उनकी जो फादर या कोई मदर फॉरेन से है और वो इंडिया से, इस प्रकार से अगर मदर या फादर इंडिया या ब्रिटिश दोनों में डिफरेंस होगा, एक इंडिया से एक ब्रिटिश से, तो उसको बोलते हैं हम एंग्लो इंडियन. सो एंग्लो इंडियन लेडीज़ डर जाती थी इसका बिहेवियर देख के. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल इन द सन ऑफ मेनी ईयर्स, फॉर मेनी ईयर्स. सो उनका जो हाथ था वो बोला गया है कि बहुत ही ड्राई दिखता था. जैसे कि पिकल का मीनिंग क्या होता है, जहाँ पे बहुत दिनों तक अगर किसी चीज़ को हम रखते हैं तो उसके बाद जैसे सन में किसी चीज़ को रखने के बाद वो ड्राई अप हो जाती है, उस प्रकार से उसके हैंड्स दिखते थे. हार्ड उसका मीनिंग होता है. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandfather believed a tail would add to anyone's good look. So grandfather says that his tail was very good. उसके फिंगर्स तो थे बहुत ही फास्ट, और जैसे विक डरावने भी थे. और ग्रैंडफादर बिलीव करते कि किसी भी एनिमल को अगर टेल है ना, तो उसका लुक थोड़ा डिफरेंट लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है. यानी टेल से किसी भी एनिमल की खूबसूरती हम देखते हैं. सो ये ह्यूमरस वे में कहते हैं कि हाँ, टेल किसी को अगर होती है तो हमें अच्छा लगता है. ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, एंड हिज टेल वॉज सर्विंग एज अ थर्ड हैंड बिकॉज ही कुड यूज द टेल एज अ हैंड. He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of his reach of his hand. So he could use his hand to pick up something. Scooping up क्या मीनिंग होता है, to pick up, किसी चीज़ को उठाना. सो ब्रांच से वो खुद को हैंग भी कर सकता था. उसके बाद उसमें वो कैपेसिटी थी कि किसी चीज़ को अगर उठाना है और उसके हैंड की कैपेसिटी के बाहर अगर कोई चीज़ है तो उसके टेल के ज़रिए वो उठा सकता था. यानी ही कुड यूज़ हिज टेल एज अ थर्ड हैंड. तो उन्होंने बोला कि इसकी जो टेल है थर्ड हैंड का काम करती थी. ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट व्हेन ग्रैंड फादर बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल. सो ग्रैंड मदर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन एनिमल्स. She always gets angry if grandfather is bringing some animals at home. So first का मीनिंग होता है जैसे अनॉय रहना या एंग्री होना किसी चीज़ पे. तो उनको बुरा लगता था अगर कोई एनिमल घर पे आ जाता है तो. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in particular good mood. So they decided that the grandfather should not know the monkey had bought. Why? Because if she will know the monkey is there in the house, then she will get angry. That's why they were waiting for good mood. अगर उसका गुड मूड होता है तो उस वैसे मूड में वो बता सकते थे. Grandfather and I put him away in a little closest opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. So first they decided to keep in the room to the Toto. और उन्होंने क्या करा कि एक जो बेडरूम के वॉल है वहाँ पे एक नेल लिया. उसको पेग का मीनिंग होता है एक नेल को, या हम बोलते हैं ना किसी खूटी जैसे होती है, नेल को उन्होंने ठोक दिया और उससे उसको बांध के रख दिया. दे टाइड दैट मंकी फैशन इनटू द वॉल में एक नेल को डाल के उसको बांध के रख दिया अच्छे से. उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ पे अच्छे से रहेगा. अ फ्यू आवर्स लेटर, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather, now stood out as a nacked bricks and plaster. So then they came return, and they could see now, when they kept that Toto there, everything was good as usual. But when they came back, when they saw, he had torn ऑल द ऑर्नामेंटल पेपर्स विच वेर चूजन बाय ग्रैंडफादर. सो वो जो वॉल थी उस पर कुछ पेपर्स लगाए हुए थे ऑर्नामेंटल, जो डेकोरेटिव बोल सकते हैं हम उसको. ऑर्नामेंटल पेपर को, डेकोरेटिव पेपर को पूरा उसने फाड़ दिया था. और वो जो ब्रिक्स थे और प्लास्टर था अभी दिखने लगा था. इट वॉज लुकिंग नेक्ड क्या मीनिंग क्या होता है, अनकवर्ड, ओपन हो जाना, जैसे अनकवर्ड हो जाना. सो उसको पूरा जो वॉल था वो अनकवर्ड हो चुका था. जिससे स्टार्टिंग में पेपर लगाए थे उसको उन्होंने अनकवर्ड कर दिया था उस मंकी ने, और वो पूरा उसने लॉस कर दिया था उनका. द पेग इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट. और जो वो
एक नेल था वो भी निकल चुका था। कम आउट, रेंज का मीनिंग होता है कम आउट, उसके सॉकेट में से जहाँ पे उसको ऐड किया गया था उसमें से निकल चुका था वो। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रीड्स। श्रीड्स का मीनिंग क्या होता है? टू टोअर इन टू पीसेस, किसी चीज़ को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में स्लाइसेस करके फाड़ देना। तो उसका जो स्कूल ब्लेजर था रस्किन बॉन्ड का, वो भी पूरी तरह से उसने फाड़ डाला था अभी तक, जब तक वो आती नहीं है रिटर्न। आई वंडर दैट ग्रैंड मदर वुड से, सो सॉरी, आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर वुड सी। सो वो तो शॉक हो गया था रस्किन बॉन्ड कि अभी ग्रैंड मदर कितना चिल्लाएगी, क्योंकि ऑलरेडी शी डजंट लाइक एनी एनिमल्स इन हर होम। एंड व्हेन शी गॉट टू नो दैट Toto had torn out all the blazers as well as some ornamental papers, then she will definitely get angry. So the writer was thinking what she will say. But grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. But grandfather was looking happy. He was happy with the performance of Toto. He thought that now he is doing well. If he has done some mischief, he had torn the ornamental papers and all the blazers he has torn, but then also grandfather didn't worry about it. उसको लगा कि चलो अच्छा है, मंकी ने कुछ तो किया है. He is clever, said grandfather. Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. So grandfather says that he is so clever. If we will give him more time, no, if we could give him more time, then he could tied the torn pieces into a rope and he could go away, he could escape from the window. तो ग्रैंडफादर बोलते हैं इसको अगर और ज़्यादा टाइम देते ना तो इसने तुम्हारे ब्लेजर को जैसे फाड़ा है ना, उसको वो एक रोप बना देता उसका, और उसके ज़रिए वो क्या कर सकता था, खिड़की से बाहर भाग भी जा सकता था. So his presence in the house still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived in a sociably together. सो टोटो इस प्रकार से मिस्चीवियस बिहेव कर रहा था स्टार्टिंग से ही. जैसे हम देखते कि किसी को डराना, किसी चीज़ को फाड़ देना, ये जो सारी क्वालिटीज़ थी उसमें थी. जो भी शरारती बच्चे होते हैं उस प्रकार का ये टोटो था, मंकी, जो बहुत ही शरारत करता था. ग्रैंड मदर को अभी तक ये बात बताई नहीं गई थी क्योंकि ग्रैंड मदर को ये चीज़ें पसंद नहीं थी. ग्रैंडफादर को तो अच्छा लग रहा था कि टोटो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, और उसका जो प्रेजेंस था अभी तक सीक्रेट रखा गया. दे डिडंट टेल टू एनीवन दैट टोटो इज़ देयर इन द हाउस. एंड देन टोटो वाज ट्रांसफर्ड इन अ बिग केज ऑफ सर्वेंट्स क्वार्टर. सर्वेंट्स के क्वार्टर में उसको रख दिया गया. एंड देयर वाज सम अदर पेट्स ऑल्सो एंड दे वर लिविंग इन सोशियबली मैनर. सोशियबली मीन्स फ्रेंडली. सो अच्छा फ्रेंडली टुगेदर रहते थे सारे एनिमल्स. उसमें कौन कौन से एनिमल्स उन्होंने बताया देखो. अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, a tame squirrel, and for a while my pet goat. So there was tortoise, rabbit, squirrel and pet goat. So वहाँ पे कुछ tortoise, एक tortoise था, कुछ दो rabbits थे वहाँ पे, एक squirrel थी, और उसकी जो खुद की पेट थी वहाँ पे गोट, बकरी वहाँ पे थी. तो इतने सारे एनिमल्स थे उनके जू में. But the monkey would not allow any of his companion to sleep at night. So grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. But the one problem was there. He was transferred in a zoo, but other animals were not very happy with him because he was not letting them sleep at night. So बहुत चिल्लाता था. He could make sounds and he disturbs them. That's why they could not sleep whole the night. तो वो किसी को सोने नहीं देता था चैन की नींद, क्योंकि उसे पसंद था मिस्चीवियस बिहेव करना, फिर चिल्लाना, किसी को डिस्टर्ब करना. इस चीज़ की वजह से वो सारे कंपेनियन जो थे ना रात में सो नहीं पा रहे थे. सो ग्रैंडफादर वॉज गोइंग टू कलेक्ट हिज पेंशन. ही वॉन्टेड टू गो टू सहारनपुर. सो ही डिसाइडेड टू टेक हिम अलॉन्ग. सो ग्रैंडफादर को तो पेंशन लेने जाना था. पेंशन क्या होता है? अमाउंट विच वी गेट आफ्टर आवर रिटायरमेंट. रिटायरमेंट के बाद जो हमें पैसे मिलते हैं उसको हम पेंशन कहते हैं. सो ग्रैंडफादर को तो पेंशन लेने जाना था. सो उसने सोचा चलो यार ये अगर यहाँ पर रहेगा ना तो ये तो किसी को अभी सोने नहीं दे रहा है, फिर और डिस्टर्ब करेगा, ही विल क्रिएट प्रॉब्लम. दैट्स वाई इट इज़ बेटर टू टेक हिम विथ हिम. सो उसको लगा कि चलो इसको साथ में लेके चलते हैं, नहीं तो ये यहाँ पे रहेगा तो और कुछ ना कुछ करेगा ही. Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip, but he told me about it afterward. A big black canvas kit bag was provided for Toto. So he says that unfortunately the writer uh, Ruskin Bond could not go with grandfather, but when grandfather returned, grandfather told everything what had happened in the journey.
So grandfather told that there was a big black canvas kit bag प्रोवाइडेड फॉर टोटो। टोटो के लिए तो एक ऐसी बहुत ही बिग और ब्लैक कलर की कैनवास की एक बैग रखी थी। कैनवास बहुत ही हार्ड और स्ट्रांग होता है। सो वो बैग रखी गई थी टोटो के लिए। दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबॉर्ड। सो उसमें कुछ स्ट्रॉ रखे थे, जो सूखी हुई घास कह सकते हैं हम। सो उसमें कुछ स्ट्रॉ रखे थे बॉटम में नीचे, और ये जो उसका न्यू अबॉर्ड बन गया था। अबॉर्ड का मीनिंग होता है होम। So there is one word ABOD, abode. Abode means home. So it was new home, that bag only. When the bag was closed, there was no escape. And once a bag was closed, he could not get chance to escape from that bag. So bag में से निकलने के लिए कोई मौका नहीं था वहाँ पे। एक बार उसकी जिप अगर बंद कर देते तो वो क्लोज हो जाती थी बैग। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite this way through. So Toto could not get away from that bag. Why? Because the bag was strong and hard, and he could not tear that bag also. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. So he has only one option. He could roll the bag. Bag में इधर उधर घूम सकता था, and he could jump sometime, और उसको jump ले सकता था वो air में. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. But because of jumping and rolling, the passengers and onlookers, the people who were there, they were surprised. They were curious to know that what is there in the bag. So bag में तो उसको रखा गया है, लेकिन बैग जो उछल रही है, बैग में रोल हो रहा है, कोई कुछ तो भी है उसमें, एक एनिमल या कुछ तो भी ऐसा उसमें है। सो सबको क्यूरियसिटी हो गई कि यार इसमें क्या है, चलो देखना तो पड़ेगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तो वो एक अच्छा एग्जीबिशन हो गया वहाँ पे ग्रैंडफादर जब उसको साथ में लेके जाते हैं। सो अभी प्लेटफॉर्म पे क्या होता है, दैट विल सी इन माई नेक्स्ट वीडियो।